Hello, beautiful people. Welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. So, in the previous video, I have explained about the stream. What is stream? What is intermediate operation? What is terminate operations? We have seen the theoretical portion, part of that. Even I have tried to explain you with the example of what is intermediate operation and what is terminate operation. But today, now, we'll be getting our hands dirty. We'll go in depth what exact intermediate operations Java 8 has given us, what exactly are the terminate operations which Java 8 has given us. We will look them in detail, we will go into the code, and we will get our hands dirty. But as usual, before going in there, first I'll show you in a form of a simple slide what all intermediate operations do we have, what all terminate operations do we have, and then we'll go into the depth. We'll go and solve. We'll take one example, one intermediate operation at a time. We'll check, we'll see what that does, and then we'll mark it as ticked. We have checked that. Again, we'll take one intermediate operation. We'll see what it does, and we'll mark it as check. We have done that as well. So this is how we're gonna approach this video. I hope you will like it. And in case you are liking this video, please hit the like button, share with your friend, and spread love. With this, let's get started. So yeah, as usual, I'm zoomed out and you can see my Chrome browser. So just a free word of advice. If you're learning something and if you want to know, if you want to go in depth of anything or if you want to search about anything, the documentation is one of the best thing that can help you out. If you are learning anything new, if you are very new to that particular topic, always first go and check out the documentation. I know sometimes documentation doesn't help us out that much, rather than going to someone's blog or watching someone's video. That's why I guess you guys are here. But uh, first go and read the documentation, get some gist on that, and then again go back to whatever sources you were referring to. It will give you a much better sense, and you will be able to understand better. And also, in that way, you will be able to understand about why every company or why every company, I will say, who develops some things pay a lot of attention on documentation. So as usual, we have in front of us the documentation of streams developed by Oracle. So as you can see, it's an interface, but this we have already covered. If you will see, it has explained you about everything: pipelines, base streams, intermediate operations, terminate operations. Okay, and if you'll see now, we have there are method summaries. Okay, what all methods do we have in this interface, stream interface? We have all match, any match, builder, yeah, but so many, right? It's But don't worry, I'm here. We'll go one by one as I mentioned. So let's see what first streams documentation has it for us. It's filter. Okay, filter. कौन फिल्टर यूज नहीं करता भाई? सब कोई फिल्टर यूज करता है ना अपने घर पे. फिल्टर काम क्या करता है? एकदम सिंपल से समझो. अभी तक अंग्रेजी में चल रहा था, थोड़ा हिंदी में भी बात करते हैं. फिल्टर छानने का काम करता है. ठीक है, स्ट्रीम्स में हमेशा क्या आते थे हमारे? स्ट्रीम्स ऑफ डेटा आता है. ठीक है, फिल्टर क्या करेगा? इस स्ट्रीम्स ऑफ डेटा जैसे ही आएगा, फिल्टर इस स्ट्रीम्स को छानेगा. छानेगा मतलब कुछ चीजें हटाएगा. ठीक है, तुम्हें कुछ चीजें नहीं चाहिए होंगी, तुम्हें कुछ चीजें चाहिए होंगी. ठीक है, वो छानने के बाद जो तुम्हें मिलेगा, हमेशा याद है क्या होता है? जब भी हम स्ट्रीम्स में इंटरमीडिएट ऑपरेशन करते हैं, एक स्ट्रीम आता है, ऑपरेशन परफॉर्म होता है, वो दूसरा एक स्ट्रीम मिलता है. तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है, देखो. स्ट्रीम रिटर्न कर रहा है, वो फिल्टर मेथड है. प्रेडिकेट एक्सेप्ट करता है. प्रेडिकेट बताता हूँ क्या होता है, डोंट वरी अबाउट इट. हमने अभी तक कवर नहीं किया है, पर मैं आपको ब्रीफली जस्ट में एक्सप्लेन करता हूँ प्रेडिकेट क्या होता है. तो क्या लिखा है यहाँ पे? रिटर्न्स अ स्ट्रीम कंसिस्टिंग ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दिस स्ट्रीम दैट मैचेस अ गिवन प्रेडिकेट. ओके, दिस इज एन इंटरमीडिएट ऑपरेशन. एज इंटरमीडिएट ऑपरेशन है, इसलिए देख रहे हैं अपन. ठीक है, पैरामीटर में एक प्रेडिकेट चाहिए, स्टेटलेस है, पर प्रेडिकेट ऑफ ईच एलिमेंट टू डिटरमाइन इफ इट शुड बी इंक्लूडेड और
included or not, and it is returns a new string for us. So this is what is filters. छानने का काम, जैसे मान लो मैं आपको एकदम सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट आया, ठीक है। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में अपन ने अपन को बोल दिया कि मुझे बेटा तुम उन सारे बच्चों का लिस्ट दे दो जिनका मैथ्स में 50 से ऊपर आया है। मैं तो कभी नहीं आता था, वेरी बैड इन मैथ्स, पर ठीक है, जिनका 50 से ऊपर आया है, ठीक है। तो आपके पास एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हो गया, वो स्ट्रीम्स की तरह आया। अभी आपको फिल्टर लगाना है। फिल्टर क्या है? 50 से ऊपर जिनका मैथ्स में नंबर आया है। तो आप ये कंडीशन इस स्ट्रीम पे लगाओगे। इसको ये स्ट्रीम्स पे जब ये कंडीशन लगेगा तो कुछ बच्चे फिल्टर आउट होंगे जिनका 50 से ज़्यादा आया है। वो 50 से ज़्यादा आए हुए बच्चे इस फिल्टर से पास होके आगे चले जाएंगे। तो जो आगे गए हैं वो तुम्हारी एक नई स्ट्रीम हो गई, ठीक है। तो एग्जाम्पल के फॉर्म में इसको समझ लो। अब अपन थोड़ा देखते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है, और उसके बाद अपन फिर कोड में जाते हैं फिल्टर्स के, कि फिल्टर कैसे काम करता है। Hey everyone, so let's start with the coding. Yeah, sorry, मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है क्योंकि थोड़ी सर्दी है। बट जैसे मैंने बोला था कि हम स्ट्रीम्स के कोडिंग पे अपन जाएंगे, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कोडिंग के में कि हम स्ट्रीम्स बनाते कैसे हैं। भाई बाकी चीज़ें तो हम बाद में यूज़ करेंगे, इंटरमीडिएट ऑपरेशन, टर्मिनेट ऑपरेशंस। पर अगर मुझे कोई बोल दिया कि भाई स्ट्रीम्स बना दे, आवाज़ की लग सॉरी, कि स्ट्रीम्स बना दे तो कैसे बनाएंगे। तो मैंने कोड आपके सामने रखा हुआ है। एकदम सिंपल सा प्रोजेक्ट है मेरा, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं कर रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहला है, मैंने लिखा है क्रिएटिंग अ स्ट्रीम फ्रॉम लिस्ट, ठीक है। तो मेरे पास एक लिस्ट है। जनरली हम लिस्ट पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं हमारे डे टू डे प्रैक्टिकल वर्क पे। तो अगर लिस्ट है और लिस्ट से अगर मुझे स्ट्रीम्स बनाने हैं, मैंने यहाँ पे सिंपल सा लिस्ट का एज अ कलेक्शन कंसीडर किया है। हम बाकी कलेक्शंस के थ्रू भी कर सकते हैं। तो लिस्ट से स्ट्रीम्स अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे आप देखिए, आप यहाँ पे देख पाएंगे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है। फिर यहाँ पे ये जो लिस्ट का मैंने नाम दिया माई लिस्ट, माई लिस्ट पे आप जैसे ही जाएंगे यहाँ पे आप माई लिस्ट पे स्ट्रीम का फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो जो भी कलेक्शंस हैं उनके अंदर स्ट्रीम फंक्शन अवेलेबल है। वो फंक्शन आपको स्ट्रीम ऑफ जो भी आपका डेटा टाइप है, जैसे यहाँ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है तो वो स्ट्रीम ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये हो गया वन केस। दूसरा केस हो गया कि भाई ठीक है, तुम्हारे पास कलेक्शन में लिस्ट नहीं है, मतलब कलेक्शन में शांत हो जा, आराम से बता लोगों को। हमारे पास एरे है, सिंपल सा कंसीडर करो एरे है, ठीक है। तो एरे से हमको कैसे स्ट्रीम्स बनाना है, क्योंकि बहुत बार हम एरेस पे भी काम करते हैं। तो एरेस पे करने के लिए देखिए फिर से हमारे पास एक है, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग एरे बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एप्पल, सैमसंग, वीवो, रियलमी, ओप्पो, वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड्स इज सैमसंग। आई हैव यूज्ड एप्पल बट ठीक है, नो मोर एन एप्पल फैन बॉय राइट नाउ। सो या अगर इसमें से मुझे बनाना है तो यहाँ पे देखिए मैंने माई एरे किया है, लेकिन अब यहाँ पे मैंने डायरेक्टली माई एरे डॉट स्ट्रीम नहीं कॉल किया जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट में किया था, क्योंकि एरे के पास वो मेथड नहीं है। लेकिन हमारे पास एक यूटिल क्लास है जिसका नाम है एरेज, राइट। एरेज यहाँ पे आप देखेंगे एक जावा की एक यूटिल्स क्लास है। तो इस यूटिल्स क्लास के अंदर जावा ने मेथड प्रोवाइड किया है स्ट्रीम, और उस स्ट्रीम में आपको अपना एरे जो आपने बनाया है वो पास करना रहता है। वो आपको स्ट्रीम रिटर्न कर देता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमने वही किया है, स्ट्रिंग ऑफ माई एरे बना दिया है। यहाँ पे फिर हमने उस एरेज डॉट स्ट्रीम पे माई एरे को पास किया, और हमें स्ट्रीम ऑफ स्ट्रिंग मिल गया। स्ट्रीम ऑफ स्ट्रिंग मिल गया है जो एरे से आया है। बहुत कंफ्यूजिंग है नाम, सॉरी। स्ट्रीम स्ट्रिंग स्ट्रीम स्ट्रिंग, ठीक है। चलो ये सब तो हो गया सिंपल सा कि भाई एरे हो गया, कलेक्शन हो गया। अब बोलेगा कि कोई मुझे ऐसा बोल दिया कि भाई ये 5 नाम है, ये 5, यू हैव 5 स्ट्रिंग्स, क्रिएट अ स्ट्रीम आउट ऑफ इट, यू डू नॉट हैव टू यूज एनी एरेज और लिस्ट। तो कैसे करोगे आप? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। फिर तो आप डायरेक्टली स्ट्रीम क्लास का ही फंक्शन यूज कर लो, डॉट ऑफ, ठीक है। डॉट ऑफ याद रखना, स्ट्रीम क्लास का फंक्शन है डॉट ऑफ। वहाँ पे आप डेटा, आपको जो भी डेटा आप वो प्रोवाइड कर दो। सिंपल से हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया एप्पल, सैमसंग, वीवो, रियलमी और ओप्पो, वैसे ही हम वो प्रोवाइड करें स्ट्रीम डॉट ऑफ। सिमिलरली स्ट्रीम डॉट ऑफ भी आपको रिटर्न करेगा स्ट्रीम ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे स्ट्रिंग प्रोवाइड किया तो वो स्ट्रीम ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है आपको। ठीक, ये हो गया सारे केस के जब हमारे पास डेटा है। लेकिन कोई आपको बोल दिया कि आपको स्ट्रीम का डेटा जनरेट करना है, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास डेटा था, उसको हमने स्ट्रीम में कन्वर्ट किया है, लेकिन अभी हमें डेटा ही स्ट्रीम का डेटा जनरेट करना है।
तो अगर ऐसा कोई यूज केस आता है जहाँ पे आपको डेटा जनरेट करना है, तो स्ट्रीम क्लास ने ही आपको फंक्शन प्रोवाइड किया हुआ है डॉट जनरेट, जो हमने यहाँ पे किया है। डॉट जनरेट के अंदर अपन जनरली एक लैम्डा फंक्शन, ये सिर्फ एक ही आर्गुमेंट लेगा आपका, तो हमने यहाँ पे एक लैम्डा मतलब लैम्डा एक्सप्रेशन यूज किया है, जिसमें हम जावा 8 उससे बोलेंगे कि आप जावा 8 जनरेट करो। तो स्ट्रिंग जावा 8 को जनरेट करना है, लेकिन कितना करना है हमको कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना भाई, कि 10 बार करो, 15 बार करो, 20 बार करो। तो हमारे पास उसके बाद एक लिमिट फंक्शन है, ठीक है। उसमें हमने नंबर ऑफ टाइम्स जितना हमें चाहिए, मैक्स साइज जितना अपन को स्ट्रीम का मैक्स साइज जो होना चाहिए वो मेंशन करना है, वो हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इससे हमें स्ट्रीम, ये मेथड ये क्या करेगा, स्ट्रीम जनरेट करके दे देगा। अब यहाँ पे मैंने सिंपल से सबको सिस आउट किया हुआ है, तो लेट मी रन दिस प्रोग्राम। यस, ओके। वाह, चल गया। तो आउटपुट आ गया मेरा। तो ठीक है, हेलो वर्ल्ड आया है। हेलो वर्ल्ड तो उधर से आया था। अब यहाँ पे एप्पल, वीवो, ये वाला, ओप्पो तक आया है। आप मान के चलो पहला वाला जो हमने लिस्ट से जनरेट किया था, ठीक है, लिस्ट था हमारे पास, उससे हमने जो स्ट्रीम जनरेट की, फिर उसके बाद यहाँ ओप्पो तक आया जो हमारे पास एरे था, ठीक है। और ये वाला जो आया हमने स्ट्रिंग से जनरेट किया डॉट ऑफ मेथड यूज करके, और ये डॉट जनरेट मेथड। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप सिंपल से स्ट्रीम जनरेट कर सकते हो। आगे भी अपन और तरीके देखते जाएंगे, एज एन व्हेन जैसे जैसे हम और कोड करेंगे, और भी कुछ कुछ शायद तक नए तरीके मैं आपको बताऊं जिससे आप कर सकते हो चीज़ों को जनरेट दोबारा। अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रीम्स हमने जनरेट कर लिए हैं, अब हमें फिल्टर्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है। उसके बाद नहीं, फिल्टर्स में जाने से पहले हमें प्रेडिकेट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। प्रेडिकेट के बाद अपन को स्ट्रीम फिल्टर पे कॉन्सेंट्रेट करना है। और फिर कल फाइनली एक टर्मिनेट ऑपरेशन जो अपन कलेक्शन देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ लेट्स मूव अहेड टू प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? तो प्रेडिकेट मैंने समझाया था आपको पहले भी, पर एक सिंपल सा रिफ्रेशर दे देता हूँ। प्रेडिकेट एक फंक्शनल इंटरफेस है। फंक्शनल इंटरफेस है मतलब उसमें एक सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। प्रेडिकेट के अंदर जो सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसका नाम है टेस्ट। टेस्ट जो है वो एक आर्गुमेंट लेता है। उस आर्गुमेंट पे, और वो रिटर्न करता है क्या, आपको बूलियन वैल्यू, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। ये होता है प्रेडिकेट। ज़्यादा समय ना गवाते हुए अपन सीधा चलते हैं कोड पे। तो कोड में अपन सबसे पहले क्या करते हैं, अपन चलते हैं, क्रिएट करते हैं एक लिस्ट। तो उसी प्रोग्राम में मैं कंटिन्यू करता हूँ आगे। मैं एक लिस्ट ऑफ इंटीजर बनाता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ नंबर्स, विच इज इक्वल टू आपका एरेज डॉट एज लिस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, ठीक है। 10 डिजिट करने हो गया। अब मैं यहाँ पे एक प्रेडिकेट बनाता हूँ। तो प्रेडिकेट बनाने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए प्रेडिकेट बनाने के लिए? प्रेडिकेट बनाने के लिए प्रेडिकेट चाहिए। तो लिखो यहाँ पे प्रेडिकेट। प्रेडिकेट आया आपके पास? नहीं, यहाँ पे ये देखो मेरे में थोड़ा सा दिक्कत है। आपको जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन वाला प्रेडिकेट सेलेक्ट करना, जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन वाला प्रेडिकेट सेलेक्ट किया मैं यहाँ पे, कि प्रेडिकेट किस टाइप का रहेगा, जिस टाइप का आपका लिस्ट बनाया आपने, हमने इंटीजर का बनाया तो हमने यहाँ इंटीजर का ले दिया। इसको हमने इवन प्रेडिकेट नाम दे दिया। नामकरण कर देते हैं इसका। तो इवन प्रेडिकेट बोल देते हैं इसको। ये प्रेडिकेट है तो प्रेडिकेट है, फंक्शन इंटरफेस है, फंक्शन इंटरफेस है तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? इंटरफेस है तो उसके अंदर टेस्ट मेथड है, टेस्ट मेथड का इम्प्लीमेंटेशन जो कौन करेगा वो करेगा लैम्डास। तो लैम्डास में अपन यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, एक एन देता हूँ मैं। एन क्या करेगा? एन चेक करेगा नंबर इवन है कि नहीं। इवन नंबर चेक नहीं करने का चीज़ हम बचपन से करते आ रहे हैं। सिंपल सा फॉर्म होता है एन मॉडुलो 2 = 0। तो ये हो गया। यहाँ पे फिर से अपन अपन को वो भी चेक करना है, क्या बोलते हैं, ऑड है कि नहीं है। इवन ऑड दोनों का कर लेते हैं। तो हम ऑड के लिए भी एक प्रेडिकेट बना देते हैं, इसको अपन नाम दे देते हैं ऑड यार, ऑड प्रेडिकेट। ओके, यहाँ पे अपन इसको कर देते हैं एन, ठीक है। यहाँ पे आप रीयूज कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एन और ये मॉडुलो 2 और नॉट इक्वल टू 0। बचपन का प्रोग्राम AT&T का था, तब से सबसे पहला प्रोग्राम यही लिखना सीखा था। मतलब मैं तो मतलब 12th में किया है CS, पर ठीक है, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। ये हो गया। अब अपने पास अपन क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब अपन इसको यहीं पे यूज भी कर लेते हैं। कैसे यूज करेंगे? अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे क्या करते हैं, हाँ, तो अब मुझे ये यूज करना है, ठीक है। अब आएगा मजा। अब देखो हमको किसको किस पे अप्लाई करना है, किस पे अप्लाई करना है।
इसको हम पे अप्लाई किस पे करना है, स्ट्रीम्स पे करना है। स्ट्रीम्स हमारे पास क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो ठीक है, तो पहले अपन क्या करेंगे, नंबर्स। नंबर्स हमने चेक कर लिया था ऊपर कैसे हम स्ट्रीम बनाते हैं, डॉट स्ट्रीम मेथड कॉल कर दिए। अब प्रेडिकेट कौन यूज करता है, फिल्टर। ठीक है, तो हम डायरेक्ट प्रेडिकेट को यूज करने के लिए हमें फिल्टर मेथड लेना पड़ेगा। फिल्टर को हम मेथड को हम जो आर्गुमेंट देंगे वो एज अ प्रेडिकेट जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं फिल्टर डालता हूँ, तो फिल्टर अगर आप जब भी लिखोगे, इट एक्सेप्ट्स अ प्रेडिकेट। नाउ आई हैव टू प्रेडिकेट्स विद मी, व्हिच इज इवन प्रेडिकेट एंड ऑड प्रेडिकेट। तो पहले हम इवन प्रेडिकेट डालते हैं कि मुझे इवन नंबर चाहिए। इवन नंबर मिल गया मुझे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल से अभी मैं प्रिंट कर देता हूँ बस, जो है फॉर ईच करके सिस्टम डॉट आउट डॉट कोलन कोलन प्रिंट एलन प्रिंट कर दो। ठीक है, जो भी तुम्हारा इवन नंबर है वो प्रिंट हो जाएगा। वैसे ही अपन नंबर्स, सॉरी, नंबर्स डॉट स्ट्रीम, जैसे आइडल ऐसे लिखते हैं एक ही लाइन में लिखने की जगह। फिल्टर यहाँ पे हम डाल देंगे ऑड वाला, ऑड प्रेडिकेट। ठीक है, डॉट फॉर ईच सिस्टम डॉट आउट कोलन कोलन प्रिंट एलन। यहाँ पे एक डाल देते हैं एस ओ यू, और डाल देते हैं कि प्रिंटिंग इवन नंबर्स। टाइपिंग की तो आज क्या बोलूँगा, क्या लिख रहा हूँ मैं आज, क्या कर रहा हूँ मैं आज। और नंबर्स, पता नहीं ये चलेगा कि नहीं, लेट्स, चलेगा फिर भी। लेट्स रन दिस प्रोग्राम। आई होप सो इट रन्स फाइन। मैंने यहाँ पे कुछ चेंज किया था, हाँ इसको मैंने मेन वन किया था, मैं मेन कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ। ओके, सो आई हैव माय आउटपुट। सिर्फ आउटपुट को कैसे दिखाते हैं, आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है। तो आउटपुट को काम करता हूँ मैं, फिर से रन करता हूँ। पिछले एस ओ यू आउट्स को हटाता हूँ मैं, क्योंकि इनके कारण ना वो स्क्रीन पे आ नहीं पा रहा है। आई एम स्टिल a noob in OBS, so please bear with me. Still run this. Okay, yes, now it's fine. तो हेलो वर्ल्ड आया, इवन नंबर देख लो 2 4 6 8 10, बढ़िया प्रिंट किया है, और नंबर्स 1 3 5 7 9। तो ये हमारा एग्जांपल था, एकदम बेसिक, एकदम ही बेसिक एग्जांपल, जिसमें हमने समझा प्रेडिकेट और फिल्टर्स दोनों को। तो एक ही बार में मैंने आपको फिल्टर भी समझा दिया है और प्रेडिकेट भी समझा दिया है। इसके बाद जो अपन करेंगे वो हम करेंगे मैप। और मैप करने से पहले हम और भी चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि अभी हमने बहुत सिंपल से प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे खेला है। हमारे कस्टम ऑब्जेक्ट्स जब हम बनाएंगे उस पर हम कैसे फिल्टर्स यूज कर सकते हैं, उसका कैसे हम स्ट्रीम्स बना सकते हैं, वो हम कवर करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा अपना वीडियो 4। सो टिल देन, इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शो सम लव। टिल देन, this is your host and host Vivek Singh, your teacher. Love and peace.